جنگ خندق میں 10,000 کافروں کا لشکر جو محمد رسول اللہ کو مارنا چاہتا تھا. اور گنتے رہیے گا 10,000 جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں 10,000 جو نبی اکرم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے دشمن. کتنے ہوئے؟ 10 خندق میں اور 10 خیبر میں 20. 40,000 رومیوں کا لشکر جو مدینہ میں گھس کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا تھا. اور محمد رسول اللہ 3,000 کا لشکر لے کر جب نکلے تو آپ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے. یہ 3,000 کا لشکر 40,000 رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے. 40,000 اور ادھر 20,000 کتنے ہوئے؟ 60,000. غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نکلنے کے لیے حکم دیا تھا ان کی تعداد تھی 80. وہ یہودی تھے جو اس شرط پر رہ رہے تھے مدینہ میں کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو محمد رسول اللہ مدد کریں گے، اور محمد رسول اللہ پر حملہ ہوگا تو ہم یہودی مدد کریں گے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 80. اور 13 وہ منافق تھے، 13 وہ مسلمان تھے جو جنگ میں کسی نہ کسی بہانے کے لیے، بہانے کے تحت نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں. تو 80 اور 13 کتنے ہوئے؟ 93. 80 اور 13 93. 93. لیکن ان 93 لوگوں میں 80 تو یہودی تھے، ان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں. 13 مسلمان تھے لیکن ان میں 10 لوگ کا جھوٹ پکڑا گیا جن کو معاف نہیں کیا گیا. 10 اور 3 وہ تھے جن کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. ان میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں شامل ہیں جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن اللہ کے رسول کو سچ بتا دیا کہ یہ وجہ تھی. اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا، پھر ان سے کہا بیوی کو چھوڑو، انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا. 50 دن تک پریشان رہے. اللہ کے نبی نے پھر کہا تم مسجد بھی نہیں آ سکتے ہو، انہوں نے مسجد میں بھی آنا منع کیا، لیکن اپنے گھر سے توبہ کرتے رہے، گڑگڑاتے رہے. اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، جاؤ اور ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دو. تو 13 میں 10 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور 3 لوگوں کی توبہ قبول ہوئی. تو 13 میں سے 3 نکال دیں گے جن کی توبہ قبول ہوئی، تو پھر کتنے بچے؟ 10. اور 80 منافق، 80 کافر یہودی، تو 80 اور 10 90. 3 کی توبہ قبول ہو گئی، ان 3 کو ہٹا دیجئے تو یہ 90. اور ادھر کتنے ہو چکے تھے؟ 60,000. 60,000 90. یہ گنتی جو ویدوں میں بتائی گئی ہے، جو اتھرو وید کے اندر بتائی گئی ہے، یہ گنتی نہ مہابھارت میں فٹ ہوتی ہے نہ کسی اور جنگ میں فٹ ہوتی ہے. یہ گنتی ٹوٹل کے 60,000 90 شترو، 60,000 90 دشمن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جن سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی حفاظت فرمائی. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس سے زیادہ اسپشٹ وید کا منتر آپ کو نہیں ملے گا. ششٹم سہسترا نویتم چکورم اروش میں دھوددمہے. ہم اس کلکی کو، اس نراشنس کو، اس محمد کو، اس انتم مہارشی کو 60,000 90 شترو سے، دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. 60,000 90 دشمنوں سے ہم اس کی رکشا کریں گے. یہ گنتی کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی، دشمنوں کی. اور اس کے بعد والا منتر دادش نہیں ادم جناب شرط نراشنسستشوشیتے سشٹم سہسترا نویتم چکورم ورش میں دودت میں.
ओस्ट्रा, ये दूसरा मंत्र, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1 हो चुका। मंत्र नंबर 2, ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधू मंतो द्युदशा, वो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेगा। पहली चीज, किस जमान कहां पैदा होगा? रेगिस्तान में। देखिए अरब रेगिस्तानी इलाका है, तो आखिरी नबी कहां आएगा? रेगिस्तान में। ओस्ट्रायस परवाहिड़ो, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा और उसकी प्रिय सवारी, उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। अरब के अंदर प्यारी सवारी क्या थी उस जमाने में? ऊँटनी। आज के ज़माने में हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल की अवतार आया नहीं, आएगा आएगा। आज के ज़माने में लोग ऊँट पर बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। अब तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर और 4 व्हीलर के बाद अब तो फॉर्च्यूनर का ज़माना आ चुका है। अब तो स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही हैं। अब वो पीछे क्या ऊँट वाला ज़माना अब लौट कर आएगा? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में आएगा, मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में, यहाँ अरब जजीरतुल अरब में पैदा होगा और उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सफर किया करते थे, ऊँटनी की सवारी भी किया करते थे। आपने खच्चर की भी सवारी की है, आपने गधे की भी सवारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा सवारी आपने ऊँटनी की है। यहां तक कि जब आपने आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, तो उस मौके पर भी आपके पास एक ऊँटनी थी जिसका नाम कस्बा था। उस कस्बा ऊँटनी पर लगाम कसी गई और उसके ऊपर आपने बैठकर 1 लाख कमोबेश 44 लाख, 1 लाख कमोबेश 1,44,000 साहबा के सामने खिताब किया है। आपने खुतबा दिया है, आपने 15-20 मिनट का खुद खिताब किया है हज्जतुल विदा के मौके पर। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उस वक्त भी आप ऊँटनी के ऊपर सवार थे और उसी पर बैठकर आपने खुतबा दिया है, उसी पर बैठकर 1,44,000 साहबा को आपने खिताब फरमाया है। तो ऊँटनी आपकी प्यारी सवारी थी। ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो, वो रेगिस्तानी इलाके में ऊँटनी की सवारी करेगा। आपकी प्यारी सवारी ऊँटनी थी। बधू मंतो द्युदशा, बधू बहू, यहाँ बीवी पत्नी के माना में, उसकी पत्नियों की तादाद संख्या होगी, उसकी कई पत्नियां होंगी, उनकी संख्या होगी द्युदशा। बधू मंतो द्युदशा, द्यु मानी 2 और दशा मानी 10, द्युदशा 2 10, 2 + 10 द्युदशा। उसकी पत्नियों की गिनती होगी, संख्या होगी 2 और 10, कितनी हो गई? 12। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 11 औरतों से निकाह किया था। आपकी जिंदगी में आपकी बीवियों की तादाद 11 थी, लेकिन मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आप इनको ले लीजिए। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया क़िब्तिया। सीरीन को अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया को आपने बतौर लौंडी खुद पसंद कर लिया और आपने अपने पास रख लिया। इस लौंडी से आपका एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके 18 महीने हो जाने के बाद 1.5 साल की उम्र में जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ है मारिया क़िब्तिया के बतन से, आपके पेट से पैदा होने वाले इस बच्चे का, तो उस वक्त नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए और आपने अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर रोते हुए ये जुमले अदा किए थे, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। या इब्राहिम, आए इब्राहिम, तेरे इंतकाल से, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हो गई हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। हम अपनी ज़बान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए।
है वइन्न बिफिराक़िका लमहज़ूनून, हाँ हम तुम्हारी जुदाई से, हम तुम्हारे इंतकाल से गमगीन जरूर है, परेशान जरूर हैं, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हम ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो जाए। तो बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि 11 बीवी और एक लौंडी, 12 बीवियां वाला अगर दुनिया में कोई मिलेगा तो सिर्फ एक ही नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवी हाजरा और सारा का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी की एक ही पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक भी बीवी का जिक्र नहीं मिलता है। अलगर्ज कहने का मकसद ये, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1000 हैं, किसी के पास सिर्फ 99 रही हैं, किसी के पास सिर्फ एक ही है और किसी के पास एक भी नहीं है। लेकिन आखिरी नबी के पास कितनी पत्नियां होंगी ये गिनती और ये संख्या बता रहा है अथर्ववेद कि वो 12 बीवी जिसके पास होंगी वो अंतिम ऋषि होगा। 12 पत्नियों की देख रेख जो करेगा और जिसकी जेरे निगरानी 12 पत्नियां होंगी, जिसका निरीक्षण जो कर रहा होगा वो आखिरी नबी होगा। तब आखिरी नबी के पास 12 बीवी होंगी, तो 12 बीवियों वाला जब आखिरी नबी होगा तो वो नबी हमारे पास है और हम आपको दे रहे हैं, आप लेने से इनकार कर रहे हैं। 12 बीवियां अगर किसी के पास थीं तो वो हस्ती थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।